Hello learners, welcome to कंप्यूटर पाठशाला। आज मैं आपको इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में बताऊंगी। Okay, so today I'm going to explain about input and output devices. A computer works with the help of different devices. Input devices are basically used to enter data into the computer, while output devices display the processed information. Okay, so let's learn all of them in detail. So in this presentation, we will learn about three topics. First, computer system. Second, input device. And third, output device. So let's start with the computer system. See, the computer system works with the help of software and hardware. Now, what are software and hardware? The physical parts of a computer that can be seen and touched are called hardware. That means वो पार्ट जिनको हम टच कर सकते हैं, फिजिकली छू सकते हैं, देख सकते हैं, उनको क्या बोलते हैं? हार्डवेयर. And software is the set of instructions that helps the hardware to work in a desired manner. That means software are the instructions which we are giving to the computer with the help of different apps. These are the softwares, the different softwares on which we work. जिस पर भी हम काम करते हैं वो सॉफ्टवेयर है. क्यों वो सॉफ्टवेयर है? क्योंकि हम उससे काम करना सिखा रहे हैं कंप्यूटर को. अगर हम सॉफ्टवेयर पे वर्क नहीं करेंगे तो हमारा हार्डवेयर भी वर्क नहीं करेगा. Okay, that means both are independent on each other. Without software computer cannot work. हम सॉफ्टवेयर पे वर्क करें, हमारे पास हार्डवेयर अवेलेबल नहीं है, सो उस सॉफ्टवेयर का कोई यूज नहीं है. और अगर हमारे पास हार्डवेयर है, मींस डिवाइस है, और हमारे पास उसके अंदर डालने के लिए ना कोई सॉफ्टवेयर है, ना विंडोज है, ना कोई एप्लीकेशन है, नथिंग वी हैव. सो व्हाट इज दैट अबाउट? दैट मीन्स दैट इज ओनली अ ब्लैक बॉक्स. वो लैपटॉप हो गया, चाहे आपका स्क्रीन हो गई, आपका स्मार्ट बोर्ड हो गया, वो सब क्या है? वो एक ब्लैक बॉक्स के अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि उन पे करने के लिए कुछ नहीं है. सो बोथ आर इंडिपेंडेंट. अगर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर साथ में है, साथ में वर्क कर रहे हैं, देन ओनली अ कंप्यूटर सिस्टम विल मेक. Next is working model of a computer system. So here we'll learn about how our computer system actually works. As we all know, a computer works on the IPO cycle. So what is IPO? I means input, P means processing, and O means output. So on this IPO cycle, our whole computer system will work. So first we'll discuss about input device, that is I. So input devices are used to enter data and instructions. Next is processing. As we all know, processing has been done by the CPU. That is a brain of a computer. So it processes the input data and displays the processed data as output. इसमें पहले डेटा इनपुट किया जाता है, वो प्रोसेस होता है, और बाद में डेटा प्रोसेस होने के बाद हमें क्या डिस्प्ले करता है? आउटपुट डिस्प्ले करता है. Okay. And next is the output device. Output device means which is used to display the data, जिसके थ्रू हम उस processed data को, अपने output को देख पाते हैं. That devices are known as output devices. That means with the help of output device only we are able to see that data, will able to get that data which comes after processing. Now see the next slide related to the components of the computer system. Component means main parts. क्या क्या चीजें हैं, मेन चीजें क्या हैं जिनके बिना हमारा कंप्यूटर सिस्टम वर्क नहीं करेगा, या हम कह सकते हैं कि हमारा कंप्यूटर सिस्टम अधूरा है. So these are the 5 main component or 5 major components we can see. So first is input unit, which is used to enter data and instructions. Next is output unit, which is used to display the result. Third is storage unit, which stores data and information. Fourth is CPU unit, that is a brain of a computer,
which process the input and displays the output. And the fifth one is the control unit, which controls all the computer operations, whether they are logical or arithmetic operation. So these are the five major components of a computer system. Now we'll move to the next slide. See, here we'll discuss about some input devices. As we all know, input devices help us to enter data and instruction into a computer. So these are some of the common input devices. What are these? Keyboard, mouse, scanner, barcode reader, web camera, microphone, light pen, and digital camera. So these devices allow users to communicate with the computer. कीबोर्ड से हमको पता है हम टाइप करते हैं तो हमें डिस्प्ले शो होता है, ठीक है। जो भी हम टाइप करेंगे वो किसके थ्रू कर पाते हैं हम? कीबोर्ड के थ्रू, क्योंकि कीबोर्ड के थ्रू हम कोई चीज दे रहे हैं, एंटर कर रहे हैं कंप्यूटर पे, इसीलिए वो इनपुट डिवाइस है। माउस के थ्रू भी हम क्या करते हैं? क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करते हैं, ओपन करते हैं, दैट मीन्स दैट इज ऑल्सो अ इनपुट डिवाइस। स्कैनर से क्या होता है? स्कैनर से हम if we want to transfer a single photograph or a single page or anything to the computer, means inside a computer, अगर हमें कोई हार्ड कॉपी हमारे पास है और वो हमें कंप्यूटर पे भेजनी है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? स्कैनर का यूज करेंगे। भाई सॉफ्ट कॉपी होती है और हार्ड कॉपी निकालनी होती है तो हम प्रिंटर का यूज करते हैं। सेम हमारे पास हार्ड कॉपी है, हमें सॉफ्ट कॉपी चाहिए, हमें सिस्टम के अंदर भेजना है। जैसे आप लोग देखते होंगे, आप लोगों को फॉर्म्स वगैरह भरने होते हैं, एग्जाम फॉर्म होते हैं या कोई भी XYZ फॉर्म होता है, तो उसमें क्या होता है? मार्कशीट्स बोलते हैं कि मार्कशीट्स एंटर करो, तो मार्कशीट की क्या सॉफ्ट कॉपी एंटर होती है ना फॉर्म फिल करने के लिए। तो इफ वी हैव हार्ड कॉपी ऑफ मार्कशीट तो वी कैन जस्ट सेंड दैट मार्कशीट इनटू द कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ स्कैनर। नेक्स्ट है बारकोड रीडर। ये मेरे ख्याल से सबने देखा होगा, ठीक है, जिनसे क्या होता है? द अमाउंट, द प्राइस वी कैन चेक। बहुत सारी चीजें जो हैं वो कोड्स में लिखी होती हैं इनसाइड दीज बार कोड। सो इस डिवाइस से क्या होता है? दिस इज द इनपुट डिवाइस विच फेच द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बारकोड रीडर, ठीक है। दिस इज अ बारकोड रीडर विच फेच द इंफॉर्मेशन, मीन जिसके थ्रू आप इसके पीछे कौन सी इंफॉर्मेशन है, क्या प्राइस लिखा है या क्या डिटेल लिखी है, दैट वी कैन कैच विद दिस रीडर, ओके। तो दिस इज ऑल्सो अ इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट इज वेब कैमरा, ओके। जैसे कि आप ऑनलाइन क्लासेस लेते हो या कोई भी चीज है, आप वेब कैमरा का यूज करते हो। आप किसी से बात करनी है, ठीक है, कॉन्फ्रेंसिंग करनी है, तो वेब कैमरास का यूज होता है बेसिकली, सो दैट यू कैन एंटर योर फोटोग्राफ इनसाइड द कंप्यूटर। आप जैसे बैठे हैं, अगर मैं ही बैठी हूँ और मुझे किसी से बात करनी है, ऑनलाइन बात करनी है थ्रू अवर सिस्टम, तो जो सिस्टम में कैमरे, किसी तो सिस्टम में ही कैमरे होते हैं, लैपटॉप्स पे कैमरा होता है, ऑटोमेटिकली आजकल इनबिल्ट होते हैं। बट इफ नॉट, जैसे पहले सिस्टम्स में जो पहले आपके मॉनिटर्स आते थे उनमें ये चीज अवेलेबल नहीं थी, कैमरा नहीं होते थे, तो हम क्या यूज करेंगे वहां के लिए? वेब कैमरा, सो दैट द अदर पर्सन विच इज सिटिंग on the other side they can also see directly and contact with me personally. Next is microphone. Microphone is basically used to enter the information. अगर हमें कोई चीज रिकॉर्ड करनी है या कुछ बोलना है, then we'll use the microphone. Light pen is also used if we want to enter some data into the computer, so we can use the light pen. We'll connect it through the computer. तो जो भी हम लाइट पेन से लिखेंगे वो हमें कहाँ नजर आएगा? हमारे मॉनिटर पे, डिस्प्ले पे नजर आएगा। नेक्स्ट इज डिजिटल कैमरा। दिस इज ऑल्सो यूज्ड टू क्लिक पिक्चर्स, सो दिस इज ऑल्सो अ इनपुट डिवाइस, मीन्स इनमें से हर चीज कुछ ना कुछ इनपुट कर रही है, दे रही है, ठीक है। सो दीज आर द इनपुट डिवाइसेस। नाउ सी विल टॉक अबाउट द स्कैनर्स। जैसे मैंने अभी स्कैनर की बात करी, यहां पर देखो 3 टाइप के स्कैनर्स आपको शो हो रहे हैं। तो स्कैनर मैंने क्या बोला था? अ डिवाइस दैट रीड्स टेक्स्ट ऑफ पिक्चर्स printed on a paper and translate the information into a form that computer can use. That means जो भी टेक्स्ट है या पिक्चर है या पेपर है, जो प्रिंटेड पेपर है हमारे पास या प्रिंटेड पिक्चर है, if we place that picture over here, so and this will display that information into the computer. So 3 टाइप्स के स्कैनर्स होते हैं, ठीक है।
तो क्या कर रहा है बेसिकली स्कैनर, वो डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है, जो हमारे प्रिंटेड डॉक्यूमेंट हैं, फोटोग्राफ हैं, इमेजेस हैं, उनको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है. So types of scanners are there: flatbed, sheet fed, and handheld scanners. They are basically used in schools, offices, banks, shops. Okay, and these are very important. Now we'll move to the next device. These are the output devices. So till here we have discussed about the input device. अभी तक हमने input devices को पढ़ा, ठीक है. Now we are able to study about आउटपुट डिवाइसेस, मीन्स जहां से हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है, डिस्प्ले हो रही है, हम देख पा रहे हैं. सो आउटपुट डिवाइसेस डिस्प्ले द प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन. इनपुट दिया, सीपीयू ने प्रोसेसिंग करी, प्रोसेस डेटा मिला. अब उस प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन को देखने के लिए भी हमें कुछ तो चाहिए ना, कोई डिवाइस चाहिए. सो उसके लिए हम यूज करते हैं आउटपुट डिवाइसेस को. सो द मॉनिटर डिस्प्ले द टेक्स्ट एंड इमेजेस. ठीक है, टेक्स्ट है या इमेज जो हमें देखनी है वो हमें कहाँ डिस्प्ले होके आती है, मॉनिटर के ऊपर. हेयर द प्रिंटर गिव्स अस अ हार्ड कॉपी. अगर सॉफ्ट कॉपी कोई अवेलेबल है हमारे सिस्टम पे और उसकी हमें हार्ड कॉपी चाहिए, देन वी नीड अ प्रिंटर. एंड नेक्स्ट थिंग इज स्पीकर. स्पीकर्स आर बेसिकली यूज्ड टू प्रोड्यूस साउंड्स. ठीक है, अगर कोई भी पर्सन माइक पे बोल रहा है या कोई भी पर्सन कोई चीज रिकॉर्ड कर रहा है या कोई भी अनाउंसमेंट हो रही है, तो वो जो बोल रहा है, अगर हमारे पास स्पीकर्स नहीं होंगे, विल बी एबल टू हियर दैट? नो, बिकॉज आउटपुट डिवाइस है नहीं, इनपुट डिवाइस वर्क कर रही है. तो आउटपुट डिवाइस नहीं है तो हम लोगों को कैसे सुनाई देगा? नहीं सुनाई देगा, राइट. सो इफ वी वांट टू लिसन देन वी नीड अ आउटपुट डिवाइस, दैट इज स्पीकर्स. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द मॉनिटर्स. जैसे मैंने अभी आपको बताया था, डिस्कस भी किया था कि मॉनिटर्स 3 टाइप के होते हैं. ठीक है, मॉनिटर्स का बेसिकली पर्पस क्या है? डिस्प्ले का पर्पस है. जो भी इनपुट दिया है उसको डिस्प्ले करना है. ठीक है, सारे मॉनिटर्स का सेम पर्पस है. बट व्हाई देन दीज 3 टाइप ऑफ मॉनिटर्स आर हियर? ठीक है, दिस डिपेंड्स अपॉन जनरेशन टू जनरेशन. Generation means time period, we can say. At previous time, this type of monitors are there. These are the CRT monitors. They are older and bulky. आप देखो पीछे से कितना हैवी इनका जो बैक होता था, वो बहुत ज्यादा हैवी होता था. ठीक है, साइज में छोटे होते थे, बहुत हैवी होते थे एंड बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते थे. मीन्स दोनों ही चीजों में प्रॉब्लम थी. हैवी थे तो एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बहुत टफ था. सेकंड, इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा यूज करते थे. उसके बाद आए एलईडी मॉनिटर्स. दीज आर थिनर एज कंपेयर टू द CRT एंड दीज ऑल्सो कंज्यूम्स लेस पावर. जितनी पावर CRT यूज कर रहा था उससे कम पावर में हमें एलईडी मॉनिटर्स मिल गए. तो ये अच्छा है क्या बुरा है? अच्छा ही है ना, कि हमें डिवाइस और अच्छी मिल रही है लेकिन पावर हमारी कम यूज हो रही है. ठीक है, सो देन वी हैव मूव टू एलईडी मॉनिटर्स. उसके बाद एक और मॉनिटर्स आए थे, LCD मॉनिटर्स. दीज आर थिनर, लाइटर एंड दे ऑल्सो कंज्यूम्स लेस इलेक्ट्रिसिटी. ये और ज्यादा लेस इलेक्ट्रिसिटी यूज करते थे एज कंपेयर टू CRT. दैट मीन्स ये दोनों LED or LCD, both are the monitors which consumes less electricity as compared to the CRT monitors. Nowadays we are using basically LED monitors. LED देखो टेलीविजन्स भी आते हैं आजकल. ठीक है, पहले के टेलीविजन कैसे होते थे, हमें कोई टेबल या कोई स्पेस चाहिए होती थी, बड़ी सी स्पेस जहां हम टीवी को रख पाए. आज की डेट में क्या होता है, वॉल से अटैच हो जाते हैं. बिकॉज दीज आर LEDs, दीज आर थिन, पतले पतली डिवाइसेस हैं, आराम से फिक्स हो जाती है. सो सबसे पहले जो आया था वो CRT मॉनिटर था. सेकेंड में जो आया था वो LCD मॉनिटर थे. अब जो आए हैं वो LED मॉनिटर्स हैं. दीज आर द मॉनिटर्स विच कंज्यूम्स मोर लेस पावर एज कंपेयर टू द LCD. मीन्स ये इनसे तो कम पावर को कंज्यूम करते ही हैं, इनसे भी ज्यादा 40% कम लेस पावर का यूज करते हैं. नाउ बट these are less expensive, okay, but consumes more electricity and space. These have better display and consume 40% less power than LCD. And these have thinner, lighter and consume less electricity as compared to the
CRT. So what are the full form? CRT, that is cathode ray tube, LED, that is light emitting diode, LCD, that is liquid crystal display. ठीक है, बिकॉज आप देखो मॉनिटर जो है ना सबसे ज्यादा यूज होने वाला आउटपुट डिवाइस है, सबसे ज्यादा। ठीक है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो रहा है, चाहे वो आपके लैपटॉप के फॉर्म में, आपके सिंपल मॉनिटर्स के फॉर्म में, टीवी के फॉर्म में है, तो सारे मॉनिटर्स ना दीज आर यूज टू डिस्प्ले। आपने देखा होगा स्मार्ट बोर्ड्स हैं, आजकल स्क्रीन्स लगी हैं, रोड्स पे देखो स्क्रीन्स लगी हैं, वो सब क्या है? ये सब मॉनिटर्स हैं, इनमें डिस्प्ले हो रहा है, जहां से भी इनपुट आ रहा है एवरी पर्सन इज वॉचिंग इट थ्रू द monitors only. So these are the most common and the highest usable. Okay. Now next we'll discuss about printers. So printer is also an output device which is used to print documents on paper. अगर हमें पेपर पे कोई प्रिंट चाहिए then we use the printer. So basically 3 type of printers are there. First is dot matrix printer. It works like a typewriter and creates impression on a paper. टाइपराइटर की तरह वर्क करता है, डेट मीन्स एक एक लेटर अगर आप लिख रहे हो उसका इंप्रेशन वो किस पर छोड़ता है? पेपर पे छोड़ता है। नॉइजी बहुत ज्यादा होता है, खट 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 ऐसे करके आवाज आती है, लेकिन एक्सपेंसिव कम होता है। एंड इट प्रिंट्स इन ब्लैक कलर। आपने देखा होगा टाइपराइटर ऑफिस में भी देखे होंगे, जो पहले गवर्नमेंट ऑफिस है वहां पर टाइपराइटर्स देखने को आज भी मिल जाते हैं कहीं कहीं पे। तो खट 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 आपने देखा होगा, उनकी कीज जो है ठीक है कैसी होती हैं, जब आप उनको टाइप करते हो तो वो एक एक लेटर टाइप करता है, तो वो जो लेटर एक एक टाइप होता है उसकी जो इंप्रेशन है उस पेपर पे आता है कि हाँ ये यहाँ पर कुछ टाइप हुआ है। तो वो नॉइजी होते हैं, थोड़ा सा आवाज आती है, एक्सपेंसिव नहीं होते हैं ज्यादा, बट they prints in black color. So these are dot matrix printer. Next we'll talk about inkjet printer. So it uses inkjet, से आपको नाम से ही लग रहा होगा ink, that means it uses ink to print text and images. ये क्या यूज करता है? ink यूज करता है। So sprays droplets of ink on a paper to form text and graphics. तो ये वाला प्रिंटर क्या करता है? ये ड्रॉपलेट्स को स्प्रे करता है पेपर के ऊपर उस टेक्स्ट और ग्राफिक्स को फॉर्म करने के लिए जो उसको इनपुट दिया गया है कि इसका आपको प्रिंट लेना है या जो इमेज हमें चाहिए। तो ये प्रिंटर क्या करता है? उस इमेज के, ठीक है, उस इमेज की तरह क्या करेगा? स्प्रे, ठीक है, ड्रॉपलेट्स को फेंकेगा, इंक की ड्रॉपलेट्स। इंक क्यों? क्योंकि भाई अगर कलर्ड है, ठीक है, कलर्ड पिक्चर चाहिए हमें, तो फिर हम कैसे लेंगे? अगर आप सिंपल ब्लैक एंड व्हाइट मांगेंगे तो ठीक है, ब्लैक व्हाइट शीट होती है, आपको ब्लैक प्रिंट होके मिल जाएगा। बट इफ यू वांट टू स्प्रे ड्रॉपलेट्स ऑफ इंक ऑन अ पेपर, तो वो क्या करेगा? अलग अलग कलर की इंक्स जो होती हैं उसमें, उनको ड्रॉप के फॉर्म में, ठीक है, पेपर पे स्प्रे करता है, सो दैट इट कैन फॉर्म द टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स एग्जैक्टली व्हाट वी वांट फ्रॉम दैट इनपुट। ओके, इट प्रिंट्स इन ब्लैक एंड कलर्ड आउटपुट, दैट मीन्स इससे हमें दोनों प्रिंट मिल सकते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट भी हम ले सकते हैं और कलर्ड प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। एंड इट प्रोड्यूसेस हाई क्वालिटी प्रिंट, सबसे हाई क्वालिटी प्रिंट ये हमको देता है। नेक्स्ट इज लेजर बीम, लेजर प्रिंटर विच यूज लेजर बीम टू प्रिंट। ठीक है, इसमें लेजर बीम्स का यूज होता है, लेजर टेक्नोलॉजी यूज होती है, एंड दिस ऑल्सो प्रोवाइड हाई क्वालिटी प्रिंटिंग। Okay, it is very fast and give high quality output, and it works like a photocopier. So printers are widely used in homes, schools, offices. कोई जगह I don't think कि कोई ऐसा ऑफिस होगा आज की डेट में जहां पर प्रिंटर का यूज नहीं होता है। Everywhere we need a printer. Okay, even in hospitals also we need a printer. So many places, in every place, maximum in the world, कुछ ही प्लेसेस ऐसी हैं जहां प्रिंटर का यूज नहीं है। बेसिकली इंडस्ट्रीज हो गई, बैंक्स हो गए, ऑफिसेज हो गए, स्कूल्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, और भी कई तरह के बिजनेस हैं जहां पर हम प्रिंटर का यूज करते हैं। So thank you everyone for listening to my presentation. I hope you understood the concept of input device and output devices. Thank you, and please subscribe my channel, that is Computer Pathshala, for more similar videos.
थैंक यू। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।